Yes, ma'am. Yes. Now children, अब आप लोग सुनाई दे रहे होगे मेरी बात? Now, yesterday we have started chapter 8. Now, today we will continue it. Today we will continue it. Yesterday we have studied about the hot and cold desert. The hot desert, in hot desert we have studied about the Sahara desert, and in cold desert we have studied in about the Ladakh. Ladakh is situated in India and Sahara is in South Africa. And now today we will study life in the temperate grassland. Two types of grassland we will study, and that is the one is the temperate grassland, that is the prairies, and second is the veld. Veld is in South Africa, and prairies in North America. तो अब हम लोग इसको थोड़ा सा देखेंगे. आप लोग बुक है, पेज नंबर है 60. पेज नंबर इज 60. In temperate zone where climatic conditions are moderate, the grasslands are more common. The grasslands which are found between subtropical and subpolar regions are known as temperate grassland. They are known by different names in different continents. अब उनको कहता है कि डिफरेंट कंटिनेंट में डिफरेंट नेम से ये ग्रासलैंड जाने जाते हैं. फॉर एग्जांपल द प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका, पम्पास इन साउथ अमेरिका, द स्टेप्स इन एशिया and Europe, the dons in Australia and the veld in Africa. This is the name of the different types of grasslands. Anurag, why have you decorated your name in such a way? Anurag, Anurag, why have you decorated your name in such a way? May I keep you in the waiting room, Anurag? Change your name, Anurag. Otherwise, you will be not allowed to enter in the class. Very bad it is. The states in Asia and Europe, the dons in Australia, and the veld in Africa. The temperate grassland provided good pasture and an ideal condition for animal rearing. अब कहता है good pasture मतलब जानवरों को खाने के लिए अच्छा ये देता है, और ये क्या कहता है कि एनिमल जानवर पालने के लिए भी एक अच्छा कंडीशन वहां पे होता है. In this section, we will study about the two temperate grasslands of the world, the prairies in North America and the velds in South Africa. अब यहाँ पर हम ये कहता है कि इस सेक्शन में हम लोग दो इसको पढ़ेंगे, एक प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका में और पम्पास वेल्ड साउथ अफ्रीका का, एंड वेल्ड जो है वो साउथ अफ्रीका का हम लोग पढ़ेंगे. The prairies. The grassland in North America are known as the prairies. They cover a large area of USA and Canada. This area is drained by the river Mississippi. मतलब drain मतलब वहाँ से कौन सी नदी बहती है? Mississippi नदी बहती है. Drained by the river Mississippi and its tributaries. The basin is very fertile and important for agriculture. कहता है कि ये बेसिन जो है बहुत फर्टाइल है और एग्रीकल्चर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. मतलब इट इज वेरी मतलब बहुत होती है. The prairies have a continental type of climate. Continental मतलब summers are hot. देखिए continental type of climate उसके आगे दिया भी है किस तरह का होता है. Summers are hot and the winters are cold. The temperature in summers goes as high as 38 degrees Celsius and in winters it is as low as 40 degree. अब विंटर में -40 डिग्री हो जाता है और समर में 38 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है. The rainfall is not sufficient for the growth of trees. In a state, different types of grasses can be found. मतलब rainfall ज्यादा नहीं होता है, कम होता है, इसलिए जो है वो sufficient नहीं होता है कि तरह बड़े बड़े पौधे हों. तब इसके जगह पर लंबे लंबे ग्रास होते हैं. In some places, grasses can be founded here. In some places, grasses grow taller than a man. The common animals here are jackal, rabbit, deer, dog, etc. Large herds of bison are also found in the prairies. मतलब झुंड भेड़ों का बहुत बड़ा बड़ा झुंड भी प्रेरीज में मिलता है. A large part of prairies is now being converted
A large part of prairies is now is being converted into agricultural land. अब कहता है कि मतलब बहुत ज्यादा प्रेरीज का बहुत सारा जो पार्ट है वो एग्रीकल्चरल लैंड में उसको बदल दिया गया है. द मेन क्रॉप्स आर wheat, corn, oat, etc. The farms are big in size and the work is mostly done on with the help of machine. अब कहता है वहाँ फार्म का जो साइज होता है बहुत बड़ा बड़ा साइज होता है, मतलब बड़े बड़े साइज के खेत होते हैं और खेती का काम जनरली जो है कैसे किया जाता है, मशीन से किया जाता है. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज नोन एज एक्सटेंसिव फार्मिंग. अब कहता है कि इस तरह के फार्मिंग का नाम क्या है, एक्सटेंसिव फार्मिंग कहा जाता है. दिस मेथड इज इन दिस मेथड ऑफ फार्मिंग मॉडर्न मेथड ऑफ कल्टीवेशन एंड हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स आर यूज. अब इसमें क्या क्या यूज किया जाता है, मॉडर्न मेथड ऑफ कल्टीवेशन मतलब खेती के नए नए तरीके और बीज वैसा जैसे बहुत ज्यादा उसमें मतलब वेराइटी वाले बीज, हाई क्वालिटी के बीज, उन्नत बीज जैसे अच्छी खेती हो यूज किया जाता है. Do you know mixed farming means the growing of crops and rearing of animals at the same place. अब mixed farming किसको कहते हैं, जहाँ जानवर भी पाला जाता है और खेती भी की जाती है, उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, मिक्स फार्मिंग कहते हैं. The hence prairies have become famous as the granaries of the world. अब एक बात जान लीजिए कि ग्रेनरी उसको जो है वीट बास्केट कहा जाता है. प्रेरीज का जो एरिया है वो दुनिया भर का वीट बास्केट कहलाता है. वीट बास्केट मतलब गेहूं इतना ज्यादा वहां उगता है कि उस जगह से पूरे दुनिया को गेहूं दिया जाता है, सप्लाई किया जाता है वीट, इसीलिए उसको वीट और बास्केट कहा जाता है. मतलब वीट का बास्केट बास्केट सबसे ज्यादा. लेकिन अब जो है प्रेरीज में ज्यादा जो वहाँ पेड़ पौधा काटने की वजह से और कहिएगा कि ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से अब वहां भी थोड़ा सा कहिएगा कि खेती का काम में कुछ दिक्कत आया है. द पॉपुलेशन इज मेनली कंसंट्रेटेड अराउंड व्हीट ग्रोइंग एरियाज और रिवर्स. द प्रेरीज आर वेरी वेल कनेक्टेड विथ ऑल मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. अब कहता है कि जो पॉपुलेशन है वो जनरली जो है मतलब कहाँ पे लोग कहाँ ज्यादातर रहते हैं, जो खेती का एरिया है उसी के तरफ रहते हैं. द प्रेरीज आर वेरी वेल कनेक्टेड विथ ऑल मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. अब प्रेरी जो है मतलब जितने भी मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है मतलब वो एरिया भी जैसे प्लेन्स का जो एरिया होता है जो सारे लोग वहां आते जाते हैं, उसी तरह प्रेरीज वाला एरिया भी सब चीज से उससे जुड़ा हुआ है. अब कहता है transportation due to the increase in population in the recent past, the grasslands have been cleared for agriculture, construction of transport routes and settlement. This has resulted in serious problem of soil erosion leading to drought condition. अब देखिए एक तरफ बताया अभी तुरंत बताया कि ये जो है बीट बास्केट कहा जाता है, लेकिन अब उसको वहाँ खेत इतना ज्यादा काटा जा रहा है, इतना ज्यादा मतलब ये किया जा रहा है, लोग अपने रहने के लिए बना रहे हैं कि उससे उसकी वजह से अब वहां पर ड्रॉट का कंडीशन हो रहा है, मतलब सूखा. ड्रॉट का मतलब क्या हुआ, सूखा. ड्रॉट का कंडीशन का मतलब सूखा, कि अब जो है वहां पर बहुत ज्यादा अच्छी खेती नहीं हो रही है. दिस इज द, तो अब वो व्हीट बास्केट नहीं रह गया है, अब वो थोड़ा गड़बड़ हो चुका है. कहने का मतलब ये द वेल्ड प्रेरीज आर लोकेटेड इन नॉर्थ अमेरिका. ठीक है, दे आर फेमस फॉर देयर रेयरिंग ऑफ एनिमल and the mix and the agriculture, especially the production of wheat is held here, and this area is known as the wheat basket of the world. And mixed agriculture is popular here. What is the meaning of the mixed agriculture? Farming or mixed agriculture means the rearing of animals and growing different types of crops together is known as the mixed method of agriculture. The veld in South Africa, the grasslands are called veld. Veld is a Dutch word which means field. Veld क्या है, एक Dutch word है जिसका मतलब क्या होता है, field, खेत, जिसका मतलब होता है खेत. The temperate grassland of South Africa cover the southernmost part of the Africa. अब कहता है कि सब जो टेम्परेट ग्रासलैंड है वो जो है साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीका को कवर करता है. इट लाइज बिटवीन द डार्किंसबर्ग प्लेट्यू इन द ईस्ट एंड मर्ज विद द कालाहारी डेजर्ट इन द वेस्ट. प्लेट्यू और ये इसके बीच में है एरिया, तो अब नेचुरल डेजर्ट और प्लेट्यू के बीच का एरिया है. तो जनरली दोनों तरफ का जो एरिया है वो फर्टाइल नहीं है, बैरन लैंड है, और ये बीच में है, तो ये भी उसी तरह का एक रफ टाइप का यहाँ जो कुछ भी होता होगा ये होता होगा. It is also known as the high veld because it is located in the plateau surface. High veld मतलब ऊंचा वाला एरिया. क्यों ये ऊंचा हाई वेल्ड कहा जाता है, क्योंकि ये प्लेट्यू के सरफेस पर लोकेट करता है. प्लेट्यू सरफेस का मतलब प्लेट्यू के ऊपर में,
इसलिए इसको हाई वेल्ड कहलाता है। इसलिए क्या कहलाता है? हाई वेल्ड। इट इज नोन एज द हाई वेल्ड। The main rivers are Limpopo and Orange. The two rivers flow from here. They are Limpopo and Orange. The veld is situated near the coast. Coast मतलब किनारा, समुद्र के किनारा. The near the coast, as it is moderate type of climate. यहाँ का climate कैसा है? Moderate है. The summers are short and warm. The winters are long and cool. Rainfall is low. Droughts are common in this area. The climate gets cooler as the height increases. अब कैसे होता है? जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ जाते हैं क्लाइमेट कैसा होता है? ठंडा होता चला जाता है. ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन प्लांट्स डू नॉट ग्रो हियर. अब यहाँ पर बिकॉज यहाँ पर हमेशा सूखा रहता है इसलिए यहाँ पर पौधे ज्यादा नहीं होते हैं. दैट इज वाई ग्रासेस आर डोमिनेटेड वेजिटेशन ऑफ द वर्ल्ड. अब यहाँ पर भी वेल्ड में कैसा है? ग्रास ही होता है. Agriculture is not possible in the belts. That it is as it is a plateau area and the soil is infertile. डोमिनेंट का मतलब होता है, मीनल पूछी है, मीनल यू हैव आस्क्ड मीनल यू हैव आस्क्ड अबाउट द डोमिनेंट. डोमिनेंट का मतलब होता है कि सबसे ज्यादा, वही जो है ज्यादा रहता है. दैट इज नोन एज द डोमिनेंट. उसी को हम लोग कहते हैं. मीनिंग ऑफ डोमिनेंट दैट इज द कोई किसी को मतलब दबाना, कोई चीज सबसे ज्यादा होना, उसी को डोमिनेंट कहते हैं. वही डोमिनेंट है. ग्रासेज जो है ज्यादा होता है क्योंकि ये प्लेट्यू एरिया है इसीलिए, और कोई खेती यहाँ पे ग्रास के अलावा कुछ उग नहीं पाता है. एग्रीकल्चर इज नॉट पॉसिबल इन द वेल्ड एज इट द प्लेट्यू एरिया एंड द सॉइल इज इनफर्टाइल. इन एडिशन देयर इज ए लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, hence there is a low agricultural production here. The veld grasslands are rich in various minerals like gold, diamond and coal. अब कहता है वेल्ड ग्रासलैंड में क्या क्या बहुत तरह के मिनरल होते हैं जिसमें गोल्ड, डायमंड एंड कोल. कोल माइंस आर कॉमन इन जोहान्सबर्ग. अब जोहान्सबर्ग एक जगह है अफ्रीका का जहां पर बहुत ज्यादा कोल का माइन है. द डायमंड माइंस ऑफ किम्बरली आर वेल नोन ऑफ द वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ द वेल्ड. अब वेल्ड के वेस्ट साइड में डायमंड ये है, डायमंड का माइंस है. द एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो कॉमन हियर. अब यहाँ पर एग्रो बेस्ड, एग्रो मतलब एग्रीकल्चर से बेस्ट और मिनरल से भी बेस्ट, क्योंकि मिनरल भी हो रहा है और एग्रीकल्चर का भी कुछ एरिया यहाँ पे हो रहा है. दे आर ऑल्सो कॉमन हियर. Here the veld areas has reduced directly due to the development of town, cities, industries, etc. Natural environment in the veld grassland is also disturbed because of this rapid development. वेल्ड एरिया में भी जो नेचुरल इन्वायरमेंट है इसी तरह का, जैसे कि वहां का जो ग्रासलैंड का हुआ है जो मतलब प्रेरीज की तरह, यहाँ के भी ये ग्रासलैंड भी जो है थोड़ा डिस्टर्ब है. यहाँ पर डेवलपमेंट की वजह से मतलब एग्रीकल्चर और बाहर के लोग भी यहाँ आ रहे हैं. दैट इज ड्यू टू दैट दिस एरिया हैज बीन आल्सो डिस्टर्ब ए लॉट. नाउ life in the tropical forest region, the Amazon basin. As you know that Amazon basin is situated in the South America, and it is a river basin. And here in this chapter, we will study about the Amazon basin and the Ganga Brahmaputra basin. Both are very fertile areas of the world, but the climatic condition is different. So please mind it. And the Amazon basin is situated on near the equator, and it is near the Tropic of the Cancer. The Amazon basin is the largest river basin in the world.
It lies in South America. About 2/3 of the region lies in Brazil and also occupies part of Peru, Ecuador and Colombia. It is the world largest and the thickest tropical evergreen or rainforest. अब यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा और thickest मतलब घना ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। मतलब एवरग्रीन का मतलब है हमेशा सालों भर बारिश होती रहती है और पौधे पेड़ पर बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं। द अमेजन इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट टू सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नाइल है, नाइल के बाद अमेजन है। इन रेस्पेक्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट इज द वर्ल्ड बिगेस्ट। और लेकिन पानी अगर सबसे ज्यादा किसमें है? नाइल से भी ज्यादा अमेजन में। द क्लाइमेट ऑफ अमेजन बेसिन इज हॉट एंड ह्यूमिड। अब यहाँ पर क्योंकि ये जो है इक्वेटर पर है, द एरिया रिसीव हेवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर ड्यू टू द इट्स लोकेशन इन द इक्वेटोरियल रीजन। अब यहाँ पर क्लाइमेट कैसा रहता है? हॉट एंड ह्यूमिड रहता है, गर्म और तुरंत बारिश होती है। और मतलब अब यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि ये इक्वेटर पर लोकेट करता है। द अमेजन बेसिन इज नोन फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट। अब कहता है अमेजन बेसिन जो है अपने रेन फॉरेस्ट के लिए बहुत फेमस है। द ट्रीज हियर आर वेरी टॉल एंड थिक। अब यहाँ के पेड़ कैसे हैं? बहुत टॉल और थिक हैं, लंबे और घने हैं। There are several layers of vegetation. यहाँ vegetation के तरह तरह के लेयर हैं। द टॉपमोस्ट लेयर मतलब तरह तरह के, कभी कहीं किस तरह तरह के पेड़ पौधे मिलना जिसको कहते हैं। द टॉपमोस्ट लेयर ऑफ foliage is known as canopy। जो सबसे ऊपर का उसको कैनोपी कहते हैं। बिलो दिस देयर आर टू मोर, मतलब जो सबसे बड़ा बड़ा पेड़ पौधा है उसके दो लेयर और है, दे आर श्रब्स एंड बुशेज। मतलब हर तरह का पेड़ पौधा यहाँ पे होता है। कहने का मतलब यहाँ पे हर तरह का पेड़ पौधा यहाँ पे होता है। That is meaning of this। यहाँ पर we will find different types of plants and bushes, shrubs, all type। The forests are so dense that the sunlight hardly reaches the ground। अब कहता है पेड़ जंगल यहाँ का इतना घना है कि यहाँ पर सनलाइट जो है बहुत मुश्किल से जमीन तक पहुंचता है। मतलब इतना घना है कि ऊपर से ही सन के रोशनी को रोक लेता है। This region has vast and varied species of plants like rubber tree, the cinchona, the Brazil nut, and the cucaracho। The Amazon basin is rich in wildlife। अब यहाँ पर तरह तरह के जानवर भी मिलते हैं। Most of the animals are arboreal, adapted of living on trees। जो पेड़ पर रहने वाले की आदत होती है उनको हम लोग arboreal कहते हैं। Arboreal। Some of the arboreal animals are apis and lemurs। अब उसमें कौन कौन सा तरह तरह, बंदर का ये दो प्रजाति है। Reptiles and amphibians such as snake, lizard and frogs are found here। Colorful birds and butterflies are also common। The most important food crop is manioc और cassava। जो सबसे ज्यादा जो यहाँ पर important food crop मिलता है वो कौन कौन सा है? manioc और cassava है। The other crops which are found here are coffee, maize, cocoa, Brazil nut, etc। With the discovery of the New World, people from Europe migrated to South America or Amazon basin। In the past few decades, due to the increase in population, many rainforests have been cleared for various purposes। People are moving towards this area because of economic potential of the Amazon basin। Vast forest areas were cleared for setting up camp areas and constructing road। अब कहता है कि अब बिकॉज अब ये तो एग्रीकल्चरल एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे जानवर भी मिलते हैं और वाटर बॉडी पानी भी अवेलेबल है और इसका कनेक्टिविटी भी है दुनिया के सारे लोगों से, सारे एरिया से। So people from different areas of the world are coming here and they are clearing forest and for making their farmhouses and living here, and they are interested to live here। And by due to this area has been, the agricultural land or the forest area is decreasing fastly। एग्रीकल्चर तो यहाँ उतना नहीं होता लेकिन फॉरेस्ट एरिया और एनिमल वर्ल्ड यहाँ बहुत फेमस है। तो ये जो है, लेकिन ये जो है डिक्रीज हो रहा है क्योंकि बाहर के लोग आकर के पेड़ को काट रहे हैं, जंगल को साफ कर रहे हैं और फॉर देयर क्या कहिएगा सेल्फ नीड, अपने सेल्फ जरूरत के लिए वो लोग जंगल को काट रहे हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। अब गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इट इज इन इंडिया। द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इज इन India। The Ganga is the major river of the Indian subcontinent। The two big rivers of India, Ganga and Brahmaputra, join together in Bangladesh and form the world largest delta known as Ganga Brahmaputra delta। बांग्लादेश में मिलती है
वहाँ गंगा का नाम जो है हो जाता है वो ये हो जाता है पद्मा रिवर के नाम से जानी जाती है, और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है जिसका नाम है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। It is a part of the northern plain of the Indian subcontinent. It lies in the south of the foothills of the Shivalik. इंडिया मतलब हमारे ही इंडिया का ही एक पार्ट है ये। It is a vast lower lying plain covering a distance of about 2,500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये एरिया कितना तक फैला हुआ है? 2,500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। This plain is drained by three big rivers of India, the Indus, the Ganga, and the Brahmaputra, and that deposit all their fine alluvium here. अब यहाँ पर जो है इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र तीनों नदी मिल करके जो अब उनके पास जितना भी अच्छा कुछ होता है, जितना भी फाइन मतलब उपजाऊ, जिसको हम लोग फाइन को यहाँ पर फर्टाइल के नाम से बोलेंगे, उसको ये लोग यहाँ पर जमा करते हैं। इज इट क्लियर? एंड फाइनली एलुवियम हियर, एलुवियम उसी को कहते हैं जो उनका जो जितना बेस्ट है उसको जमा कर देते हैं। द डिस्ट्रीब्यूटरीज ऑफ रिवर फॉर्म a network of water canals and finally drain into the Bay of Bengal, और लास्ट में जो है बे ऑफ बंगाल में ये मिल जाती हैं, जो नदियों का जो अपना सब कुछ डिपॉजिट करते हुए फाइनली क्या होता है, बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है वो पानी। द नॉर्दर्न प्लेन इंक्लूड्स, अब इसमें कौन कौन सा स्टेट आ जाता है देख लीजिए, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और आसाम, इतना स्टेट हम लोग का इसमें आ जाता है। द रिवर कैरीज ह्यूज अमाउंट ऑफ सेडिमेंट with them which make the soil of this plant very plain very fertile। अब रिवर अपने साथ जो होता है जितना भी अच्छा चीज जो होता है बहा कर ले आता है और पीछे छोड़ता हुआ जा करके फिर बे ऑफ बंगाल में मिल जाता है। तो इस एरिया का जो लैंड है, सॉइल है, वो बहुत फर्टाइल है। तो यहाँ पे क्या होता है, किसी भी तरह का खेती यहाँ पर कोई किसी भी तरह का ग्रेन जो है यहाँ पे उगाया जा सकता है। The climate of Ganga Brahmaputra basin is hot and humid. Rainfall is heavy, but mainly concentrated during the 3 months of the monsoon, that is June, July and August. The average rainfall is about 200 centimeter. अब rainfall यहाँ पे बहुत होता है, लेकिन जनरली 3 महीना ही ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर वो भी मतलब मानसून के समय। The Ganga Brahmaputra basin is covered with tropical deciduous forest। अब यहाँ पर कौन सा, तो 200 से ज्यादा रेनफॉल नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या कौन सा फॉरेस्ट मिलता है जनरली, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, मॉनसूनल जिसको हम लोग कहते हैं। But now this area has been completely converted into farms and settlement। अब इधर जो है जनरली एकदम बहुत थिकली इट इज पॉपुलेटेड हो गया। कहने का मतलब है ये एरिया जो है अब थिकली पॉपुलेटेड एरिया हो गया है। द लोएस्ट पार्ट ऑफ द गंगा डेल्टा इज कवर्ड विथ मैनग्रोव फॉरेस्ट। मैनग्रोव फॉरेस्ट, दिस फॉरेस्ट आर डोमिनेटेड बाय ए प्लांट स्पीसीज लोकली नोन एज सुंदरी। अब उस मैनग्रोव फॉरेस्ट में एक जो स्पेशल जो एक प्लांट मिलता है जिसका नाम है सुंदरी, एंड दैट इज व्हाई दिस एरिया इज नेम्ड एज द सुंदरबन। और उसी इसके नाम से ये सुंदरबन पाया जाता है। यहाँ पर व्हाइट टाइगर, बहुत बंगाल टाइगर सुंदरबन का बहुत फेमस है। The Ganga Brahmaputra Delta is the home of various kinds of wild animals. The most common ones are one-horned rhinoceros and Bengal tiger। एक सींग वाला मतलब 12 सींगा जिसको एक सींग वाला rhinoceros। And the most important wildlife sanctuary, the Sundarban Wildlife Sanctuary, is located here. The soil of the Ganga Brahmaputra basin is very fertile and suitable for cultivation of various crops like rice, wheat, sugarcane, jute, and tea. Agro-based industries like textile and sugar, etc., are common in this region. Towns and cities of Haridwar, Allahabad, Varanasi, Patna, and Guwahati are located on or near the river banks and are developing at a very fast rate। अब कहता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ शहर और गांव, शहर जो है और बड़े और छोटे शहर ये इसके किनारे बहुत बसे हुए हैं, अब बहुत तेजी से वो डेवलप भी कर रहे हैं। चिल्ड्रेन, लास्ट चैप्टर जो है आपका चैप्टर 23 को आप लोग जो है अपना पोर्शन बन रखिएगा। ये आपका इसका होगा क्या कहते हैं वीकली टेस्ट का पोर्शन होगा। एबीसी इसका करा चुके हैं आप लोगों को। जिस तरह का क्वेश्चन आ रहा है तो उससे आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। 10 मार्क्स का जो वीकली टेस्ट आपका इस बार होगा वो लेसन 23 आपका पोर्शन है। लेसन 23 इज योर पोर्शन। इज इट क्लियर? यस मैम। कोई दिक्कत है किसी को? एनीवन हैज प्रॉब्लम? नो मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम? लेसन 23 ठीक है, आप लोग उतना ही पढ़िएगा जितना हम पढ़ाएं। यस। और किसी को कुछ पूछना हमसे?
Anyone want to ask any question? Yes, ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. Yes, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? जो यस बोलेंगे वो बोलिए. I'm not listening you. क्या बोले? लद्दाख को रिजल्ट दिया उसका I am not listening. Your voice is not coming clear to me. ओके मैम. टाइप करके बोलो, चैटिंग करके बोलो, चैटिंग करके बोलो, चैटिंग करके बोलिए. एनीवन, किसी को कुछ बोलना है? No, चैटिंग है ma'am. कि लद्दाख का जो एलिवेशन, अनन्या राज पूछिए, लद्दाख का जो एलिवेशन है वो प्लेन का या माउंटेन का? माउंटेन से उसको लिया, एलिवेशन लिया जाता है ना, एलिवेटेड फ्रॉम द, नीचे से ही लिया जाता है, मतलब कहोगे समुद्र के अंदर से उसको नापा जाता है. इज इट क्लियर? वो मतलब कहोगे सी लेवल से उसको काउंट किया जाता है. और बोलिए, और किसी को? अनन्या, 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 और कुछ? एनी क्वेश्चन? अनन्या राज. Okay. Now, have a good day. Good day, ma'am. Bye, ma'am. Bye.